Today, we have the pleasure of speaking with an inspiring entrepreneur who is making waves in the herbal soap industry. He is the founder of Somaina. His all natural soaps, shampoos, and other products are made using ingredients found in the country. Let's hear from him as our reporter Priya interacts with him. Hi, sir. So my first question for you would be like, what is Somaina personal care products all about? Uh, Actually, first of all, Somaina means beauty. So we are trying to make beauty everyone with natural products. So we have introduced this Somaina personal care products here over since February only, this year. And so, why particularly Somaina? Somaina actually, Somaina means in Boro terminology, it's beauty. तो सुंदर जो होते हैं उसी को मतलब करने के लिए हम लोग सोमाइना नाम रखे हैं. So it is Somaina. Okay, sir. So how did you start onto this journey? Actually, since 2020, everyone is suffering from coronavirus and everybody stuck in their houses only. So उस समय पर हम लोग हर एक आदमी मोबाइल में देखते थे या मोबाइल खेलते रहते थे या मोबाइल में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन लेते थे. एक्चुअली उस टाइम में दैट्स टाइम एक्चुअली क्या हुआ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सोच आ रहा था. तो उसी टाइम पर what we thought we have learned something like handmade soaps only. So हम लोग क्या किया अमेज़न से कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए हैं वहाँ से soap base लाके we made some handmade soaps here over and we try to use ourselves only first of all and we have given some our friends and relatives the soaps and they loved it and we also loved it and after that only we thought that क्यों ना हम इसको थोड़ा सा कॉमर्शियलाइज किया जाए. तो उसी सोच को लेके हम लोग थोड़ा सा उसको स्टार्ट किए हैं. And sir, what all varieties of products do you produce in Somaina? Actually, first of all, we have started only with 4 flavor of soaps only. Like first of all, papaya, because we had the papaya trees here itself, and aloe vera, and neem tulsi, you must be knowing, and rose. Actually, I have some little flower garden. So with that ingredients only we have started. And right now, only soap we have 8 kinds of flavors. And now we have shampoos and hair oils, scarves and serum, face serum, so many things. Like right now we have 22 types of personal care. And sir, about the ingredients, are all the ingredients locally produced or organically produced? Yeah, most of the products we produce ourselves also, but some products it is not available here over. Like saffron, we have to bring from what do you say, Kashmir. Coconut oil generally we bring from Tamil Nadu, and some herbs from Gujarat and some herbs from Rajasthan and some from Maharashtra also. Other than the personal care products, what other
products do you produce? Actually, people are asking us like, what you are producing. These are very much good only. So they are asking us to manufacture like some local this pickles and masalas and like turmeric, ginger, everything, jeeras. So we have started manufacturing these types of items also. It is recently started. Sir, and what is the response that you have received from the consumers? Actually, response is very much fantastic and it is encouraging us very much. Like जो हम लोग शॉप्स वगैरह बनाते थे तो लोगों ने ही हमें इंस्पायर करके मतलब वो ही लोग हम लोग को इनकरेज करता था कि ये चीज़ अच्छा हुआ है. सो दे आस्क्ड अस लाइक फॉर सो मेनी थिंग्स. तो वो लोग हमें बोला था कि हमारे जो चेहरे पे मेलेस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं उसके लिए क्या किया जाए. सो हम लोग उसी में सॉप्स वगैरह जो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कुछ सॉप्स बनाए हैं, रिंकल के लिए कुछ सॉप्स बनाए हैं, फिर जो सीरम बनाए हैं रिंकल हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बनाए हैं, जो वो बाल काला करने के लिए जो तेल है वो हम लोग इंट्रोड्यूस किया. तो लोगों की मतलब बोलने की वजह से, रेस्पॉन्स के वजह से ही हमें वो सब मतलब आइडियाज़ हम लोग मिले हैं, किए हैं. जैसे कि कोई हमको अगर पहले देखा होगा, मेरी बाल सारे सफ़ेद हो चुके थे, तो विद इन 6 months मेरी जो थोड़ा सा बाल जो है वो थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहे हैं. इट वॉज लाइक कम्प्लीटली ग्रे. और फिर जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, एंटी हेयर फॉल का तेल हम लोग ऑयल बनाए हैं, शैम्पूस बनाए हैं. इट इज़ लाइक वेरी booming only in the market. Sir, what motivated you into like starting this? मोटिवेशन एक्चुअली क्या है कि हम लोग कोई काम धंधा मतलब कोरोना के टाइम पर सब कुछ स्टक हो गया था, कुछ काम बंद हो गया था. तो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग शॉप बनाया था. तो उसी से बना के यूज़ करने के बाद वही हमें मोटिवेट किया. मतलब जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ें हैं वो अच्छा है, तो पीपल लाइक्ड इट. सो दे हैव लाइक वो लोग अच्छा पाके हमें बोला, तो वही लोग की जो रेस्पॉन्स है, वो लोग जो अच्छा पाए हैं, वो लोग यूज़ करके जो मतलब अच्छा लगा है, उसी को देख के हम लोग और ज़्यादा मोटिवेशन हो गया. तो उसी मोटिवेशन में ही वो चीज़ें जितना भी मतलब बनाने हैं या बना रहे हैं वो सब चलता रहा. Before starting this, were you interested in entrepreneurship? And मतलब ये शुरू करने से पहले आपने या अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में, तो आप करते क्या थे? हाँ, बिल्कुल. उसमें बताने की कोई मतलब अनकम्फर्ट होने की कोई बात नहीं. जो मिलता था वही करता था. हम लोग तो गांव का आदमी, ट्राइबल आदमी, तो खेती बाड़ी तो करते ही थे. साथ में थोड़ा बहुत मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी किया था, तो वो तो किया था. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बहुत आगे से हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ किया जाए. तो सिचुएशन भी ऐसा था कि हम लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ ज़रूरी होते हैं. सिचुएशन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पीस होने का भी ज़रूरी था. वो भी एक सिचुएशन पहले नहीं था. फिर भी मन में था कि कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि everyone running after like जॉब ओनली, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी हो, या काम करने के लिए जॉब के पीछे हम लोग कहीं दूर दूर हमारे बच्चे हम लोग देखे हैं. कहीं अगर हम लोग गुजरात जाते हैं या मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम लोग देखते कि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पर जाके काम करते हैं. तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक सोच था कि कुछ ना कुछ तो हम लोग कर सकते हैं. अगर छोटे से ही हो मतलब अगर शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. तो वो सोच पहले से ही था. तो उस समय सही समय हम तो थैंक यू कहेंगे कि कोरोना को. तो कोरोना के समय पर ही वो सोच आ गया और करने के लिए एक हिम्मत जुटा पाए, और वी हैव स्टार्टेड एंड आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक जर्नी फॉर अस. How are your products being sold? I mean, which places does it reach? And वो तो बहुत दिलचस्प कहानी है. शुरू में मैडम हम लोग जब शुरू किया था
उसको मतलब उसमें कोई पैकेजिंग नहीं था, तो वो था तो हम लोग हाथ में लेके घर घर जाके लोगों को बोलते थे। फिर थोड़ा बहुत सेल हुआ तो कभी नहीं हुआ, फिर हम लोग डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसमें हम लोग सीखा कि इसमें क्या नयापन लाना है। तो उसी हिसाब से हमने उसको थोड़ा सा पैकेजिंग किया। पैकेजिंग करने के बाद लोकली पैकेजिंग किया तो थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर भी हम लोग किया। तो आसपास की जो हमारी कुछ महिलाएं हैं जो वो आशा कर्मी हैं या डीआईसी में जो सॉरी आईसीडीएस में जो काम करते हैं, लाइक वो महिलाएं हमारी जो सामान है वो घर घर में जाके पहुंचाए लोकली। इसके बाद पीपल लाइक एवरीवन इंटरेस्टेड विद आवर प्रोडक्ट्स एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। सो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना शुरू कर दिया। तो अभी हमारी जो प्रोडक्ट्स है दिल्ली जाते हैं मैडम, हमारी प्रोडक्ट्स गुवाहाटी तो जाते हैं, कार्बी आंगलोंग जाते हैं, धेमाजी, सीमेंट सापोरी, और हमारी जो बीटीआर की 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक जगह में थोड़ा थोड़ा करके अभी जाते हैं। तो अच्छा है। अभी हम लोग तो अभी एक्सपोस में भी एक्सपो जो होते हैं वहाँ पर भी जाना शुरू कर दिया। पहले नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, तो हमने एक एक्सपो में अटेंड किया, 1-2 में, फिर गुवाहाटी में 23 दिसंबर से फिर शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं। फिर सनीतपुर में आपको 4 जनवरी से एक मतलब ये प्रोग्राम होने वाला है, ये बाथौ महासभा का, वहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो वहाँ पर जाने की मेन मकसद क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है सबको हम बताएं कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये जो नया यूनिक कॉन्सेप्ट है फिर हम नहीं पता है। क्योंकि मैडम ऐसा है, हैंडमेड शॉप तो मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, तो हमारा ही क्यों यूज़ करेंगे, इसमें कुछ तो है। तो वो चीज़ है को फेस टू फेस हमें लोगों को बताना पड़ता है। तो वो चीज़ है, जैसे कि मैडम आप लोग देखेंगे वो सिराम जो है हमारी जो बना है, सिराम हमने जब महाराष्ट्र में ट्रेनिंग लिया था, उसका 30 ml का जो सिराम है हमारी, ये महाराष्ट्र में हमने देखा कि वहाँ पर 7,500 में वो लोग बेचता है। तो सेम क्वालिटी का चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, ओनली 350 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्वालिटी में वही सेम क्वालिटी है, हम लोग वहीं पर जो ट्रेनिंग लिया था वही चीज़ है। तो वही चीज़ है, हमें वहाँ पर सबको बताना है, करना है। तो लोकली हम लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्पेस है, बहुत कुछ करने की है। तो हम लोग करके अगर आगे बढ़ेंगे, सबको बताएंगे, तो लोग भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो सोचें। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आपने ट्रेनिंग लिया था, तो वो महाराष्ट्र में बोला था। हाँ, महाराष्ट्र मतलब वो कुछ प्रोडक्ट्स हमने महाराष्ट्र में लिया है, कुछ है हम लोग ऑनलाइन में भी लिए हैं, कुछ कैलिफोर्निया में भी लिए हैं, ऑनलाइन मतलब ट्रेनिंग है, पेड चैनल है कुछ, उसमें हमने लिए हैं। तो ट्रेनिंग तो हर टाइम लेना ही पड़ता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट्स हम लोग को बनाना है, क्योंकि ये पर्सनल केयर है, स्किन में टच होते हैं। तो उसमें अगर प्रोपोर्शन में मतलब कंपोजिशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो स्किन खराब हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक है नो डाउट, फिर भी उसमें क्या है, जो पर्पस के लिए हम लोग बनाए हैं उसमें अगर कंपोजिशन ठीक से वो प्रोपोर्शन अगर नहीं मिलते, उसमें भी दिक्कत हो जाता है। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब सर्टिफाइड होता है? हाँ, सर्टिफाइड इन द सेंस लाइक मैडम हम लोग उद्यम का रजिस्टर्ड लिया हुआ है। फिर एक्चुअली हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है SLRM, क्योंकि मेरी मिसेज जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, पालेंग सेल्फ हेल्प ग्रुप करके हमारी डोटमा ब्लॉक के अंडर में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। तो वो अंठाईगलाव गांव है हमारी जो है, इसमें मेरी मिसेस बालेंग सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होने के नाते हमें उसमें भी SLRM के थ्रू भी मार्केटिंग में भी अच्छा हेल्प मिला, और टेक्निकल भी बहुत कुछ गाइड मिला। DIC हमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। तो वो लोग हमें बहुत सारा मतलब उसी पेपर वर्क्स में जो कंप्लेंट्स है वही लोग हमारे देखते हैं, वो लोग मतलब सब कुछ देख के हमें देता है। How many staffs are being employed in here? Actually, from outside we have 5 employees. Employees are there, and
वी आवर सेल्फ ऑल्सो लाइक मेरी मिसेज जो है, मैं हूँ, मेरे पिताजी 90 साल की है, वो भी मतलब थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, करते हैं। वो बैठे जो काम बनता है इनका, वो क्योंकि वो ऐसे ही बैठा रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर वो भी करता है। तो हम लोग करीब तो अभी तो 8 पीपल यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयड है, हम खुद हमको लेके, और इनडायरेक्ट तो वो जो मार्केट में जो सेल करते हैं या मार्केट में जो ले जाते हैं वो तो अलग है। सर नॉर्मली मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह अपना खुद का अगर कुछ स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करना होता है, और आपके जर्नी में भी अगर आपने ऐसा चैलेंजेस अगर कभी फेस किया है तो? एक्चुअली मैडम क्या है कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चर है हमारे घर में या हमारे कम्युनिटी में ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में वो बिजनेस के बारे में उतना कुछ जानकारी है ही नहीं। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो वो तो चैलेंजेस हम उसको नहीं बोलेंगे, उसको लर्निंग बोलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो उसी से हम लोग सीखे भी हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे तो फाइनेंस कितना लगेगा हमें कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे कि यूट्यूब वगैरह में बोलते हैं कि इतने में से हो जाएगा, इतने में से हो जाएगा, अभी तो जितना डालें उतना कम ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी सब मैनेज हो रहा है। जैसे कि SLRM से हमने आपको बताया था, पहले दफ़ा हमें 50,000 का एक लोन दिया था, फिर और 50,000 का, और फिर 2 लाख रुपया का, मतलब हम 3 किस्ती में हमें लोन दिया है। बहुत हेल्प कर रहे हैं फिनेंशियली, इधर है टेक्निकली तो हम लोग खुद सीख रहे हैं हम, तो उस हिसाब से टेक्निकली वो सब हो रहा है। तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर भी करते करते सीख रहे हैं। मतलब चैलेंजेस हम उस हिसाब से नहीं बोलेंगे, उसको पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऐसा बोल सकते हैं। वो तो आएगा ही, क्योंकि स्टार्टअप है कि स्टार्टिंग हम लोग किए हैं, तो कोई बताने वाला पहले से हमें नहीं था कि भाई इसको ऐसा करो, ऐसा करो, वो ना करो। वो बताने वाला बहुत कम है, या आइडिया ठीक देने वाला नहीं था। वो तो था, लेकिन चल रहा है अभी। Sir, lastly, what message would you like to give our viewers regarding the entrepreneurship and employment? And what is your future prospect? यूथ को मैं हाथ जोड़ के वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे ना भागते हुए, मतलब अगर कुछ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो बहुतों के घर खुद के साथ साथ सबकी चल लेगा। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है, लाइक बहुत जगह खाली है, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि हम लोग खाली बाहर से सब कुछ खरीदते हैं, बहुत कुछ हम लोग खाली बाहर से लेके आते हैं। तो हम लोग अगर यहीं में, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट का आदमी बहुत रिच है, इन द सेंस लाइक नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, उसी से हम लोग कुछ अगर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी मतलब बहुत बूस्ट हो जाएगा, लोगों को भी नौकरी मिल जाएगा या काम मिल जाएगा।
और मैं चाहूँगा सबको जितना भी यूथ है कुछ ना कुछ करे, बैठे ना रहें। जब नौकरी लग जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करे, मैं वही कहना चाहता हूँ। और साथ में जैसे मैडम आपने पूछा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग का सिर्फ 4 फ्लेवर शॉप्स से स्टार्ट किया था, वो भी सिर्फ 50 केजी और शॉप बेस से लेके हम लोग स्टार्ट किया था। अभी तो हम लोग शॉप बेस खुद बनाते हैं, 8 शॉप फ्लेवर हैं, पर्सनल केयर्स में सब बहुत कुछ आ रहे हैं। फिर हम लोग डिटर्जेंट में घुस जाएंगे, फिर कुछ फूड प्रोडक्ट में हम लोग घुस रहे हैं, कर रहे हैं। तो फ्यूचर तो हम लोग कभी ठान लिए हैं कि बहुत आगे तक जाएंगे, करेंगे और मेहनत करेंगे। अभी क्या होते हैं नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो नहीं बोल सकते, अच्छा तो होगा ही। वो तो मतलब मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेहनत करेंगे तो वो फल मिलेगा ही, मैं वही उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ साथ और 10 आदमी को, अभी हमारे घर में जैसे कि बाहर से हम 5-6 आदमी को हम एम्प्लॉय कर सके, तो अगर मेहनत करेंगे तो और 10 आदमी को हम लोग और नौकरी दे सकें। वही मेरी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वही सोच है कि आगे जाएं, आगे बढ़ें और लोगों को काम दें। Thank you so much, sir. Thank you for being here with us and sharing your side of the story and about Somaina. So it was a great time talking to you. Thank you very much. Thank you.